A very good afternoon to all. Under the esteemed guidance of Professor Dr. Monica Rastogi, ma'am, I, Dr. Tanushri, welcome all to this session of IIC on the topic Achieving Proposition Fit and Business Fit. The IIC cell of IMT College of Law has always strived to inculcate a spirit of innovation among its students, and this session is a part of our such efforts. I take this opportunity to welcome our guest for today, esteemed Dr. Shashank Mehrotra, sir, who with his years of experience will now enrich us with his knowledge. Thank you so much, sir, for joining us. And Thank now you. over to you. Thank you, ma'am. Okay, I will be starting off with the presentation. As ma'am already told, I am Dr. Sashank Mehrotra, Assistant Professor from IMT College of Engineering, MBA Department. So I am starting with my presentation, okay? Hello, can you hear me? Yes, Hello, sir. ma'am, the presentation is not getting opened. कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं कोई सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? जी मैम मैं शेयर पे जा रहा हूँ एंड आई एम ओपनिंग द फाइल एंड इट इज नॉट गेटिंग ओपन्ड। यहाँ पे आना चाहिए था ना मैम। आप सर एक बार एग्जिट करिए, मतलब आके एक बार ना प्रेजेंटेशन दोबारा कोशिश करिए। जी जी।
Hello? Yeah, ma'am. Sir, if you are not able to present the PowerPoint presentation, you can speak and explain. That's also Okay, fine. okay, okay, okay. Okay, I will start off with my presentation, and the presentation is on the value proposition fit and the business fit. Since it is not getting shared, so I will share it into the soft copy to the ma'am. So, what actually is value proposition canvas? You know what is business proposition fit? We have to go into the depth of it. We need to first understand what business is all about. Is business only about buying and selling of goods and commodities, or it is the physical interaction of the people, public, and the outsiders and the parties coming to and fro? It's all about. So first we need to understand what the business is all about, and then we will go into the depth of how the thing should get rationalized, or it should get proportionate, or the proposition part, and followed by the rest of the other things. Okay, now first is what is the marketing concept? Now we have to understand what the business is all about, and then what and exactly how the marketing takes place. Now these are the two different aspects. What is business? I have just told about it. Buying and selling of the goods and the services taking place between the buyers and the sellers. Now the second aspect then comes, then what is marketing is all about? Now marketing has different aspects. It involves different things and different types of the activities, but that is something which is entirely different from what we are doing in the form of the business. Business could be in the form of the anything. It could be in the form of the construction. It could be in the form of the retailing, the wholesaling part, the transportation part, the engineering part, the manufacturing or the services part, or whatsoever one may deal so. Now the thing is, in a country like India,
which has a diverse population, which has various different kinds of the people all around the arena. So many castes, so many religions, so many culture diversities. Is it fruitful to have one particular kind of the businesses going on for generations after generations, or it requires certain kind of the improvisation, certain kind of the standardization, or certain kind of the advancement into the technicalities of the different business related activities. So if we have to go into the technicalities of the different business activities, then one needs to understand how the things should get executed out for the various different types of the businesses. Okay. Now, an enterprise entity engaged in commercial and industrial or professional activities. Now, we have to go into the depth of the business. First, we need to understand what kind of the businesses are lined up which a person can do. It could be in the form of the commercial activities. It could be in the form of the wholesaling part of the activities and the industrial oriented, which in today's era is the need of the hour. How is it so? We all are faculties, we are teaching here, and most of the students which are coming into our institution, they are somewhere around the other getting placed into the different companies. So one kind of the obligation or the activity of the business is also to train the young generation as per the corporate requirements. So the orientation part or the teaching learning process should be in the form of how the industry oriented people want the youngsters to be. So one aspect could also be in the form of the proportion fit thing, could be to train the youth as per the requirements of the modern day arena. Now, how the modern day arena works around? Positive impact. Any business may create positive impact by taking action to foster well-being and to restore the environment. Whenever we are planning to establish any business, any startup, the first thing is what we are trying to inculcate to the people fruitful to the nation or not, fruitful to the people who are living into the society or not? Because our immediate customer would be whom? The ones who will be residing nearby the localities. So if we are going for any proportion or adding any kind of the enhancement to the value of it, that is a secondary aspect, value addition part. But the first thing is the business viable to the ambience of the environment? Will it straight away give us have told we are into the teaching industry. We are teaching here. There are different kinds of the number of departments and number of students starting from law, polytechnic till engineering, management. But the thing is what? The most important aspect. Each and every student which is coming into the college wants one single thing, that is placement. So the one aspect is to train the students for better tomorrow. The second aspect is to fulfill the needs of the corporate industry. जरूरी नहीं है if a person is a polytechnic graduate or a MBA की जो requirement, it is in the form of the finance, HR or marketing stream, young lot of the freshers required to the corporate industry. It may not be the same skills which can be required by the BTech or the engineering students. So there the viability needs to get identified in terms of the technical knowledge
versus the managerial and conceptual one. And that is how the business needs to foster out its activities, by planning at each successive step or regular interval of different time period. That is how things will get grown from one successive step to the another. And by taking important decisions to the consequences which takes place all around the different spheres of life. I am audible? आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. Now, the negative impact. See, if there is one aspect of the business is to earn n number of profit, but at what cost? By hurting others who are living in our localities or into the societies. क्या पैसा बनाना ही हमारा सारा मकसद है, या अपनी तरफ से कुछ ऐसा fruitful we need to give which is benefited to the young generations. Now this is something which we have to understand, being a senior persons or the senior to senior, those who are sitting to their designations, that how we have to groom the young lot of the youngsters to come into the arena of the corporate sector. दो रास्ते हैं, या तो आप उनको सेल्फ एम्पावर करिए, जिसको हम कहते हैं आत्मनिर्भरता. दूसरा एस्पेक्ट है उनको इंडस्ट्री में लाइए, उनको जो है जॉब दीजिए और जॉब के जरिए जो है उनको लाइफ में आगे बढ़ाइए. दो में से एक काम आपको करना पड़ेगा, या तो पावर दे दीजिए, नहीं तो फिर उनको सिस्टम में वो वर्क ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर दीजिए जिससे कि वो अपना भरण पोषण पेट पाल सके. Two things need not to get intermixed at one point of time. Both the things should get done on the part of the senior lot of the generation to the younger lot of the generation. अब ये आपको डिसाइड करना है बिजनेस में कब सत्ता सौंपनी है अपनी यंग जनरेशन को इन द फॉर्म ऑफ द पावर एंड पोजीशन, या कब उनको केवल सिस्टम में ग्रूम करके वन सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड पे आगे तक ले जाना है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कोई फैकल्टी आपके यहाँ ज्वाइन करता है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, पीएचडी कंप्लीटेड है, किसी भी डिपार्टमेंट में जाता है, अब उसने साल 2 साल पढ़ा लिया. नाउ इट इज अप टू द मैनेजमेंट कि उसको एसोसिएट बना के वो एचओडी डीन कब बनाना चाहते हैं, या उसको फिर वो असिस्टेंट तक ही रखना चाहते हैं कि एसोसिएट में टीचिंग तक ग्रूम करना चाहते हैं. तो ये आपका सीनियर लॉट ऑफ द पीपल के ऊपर डिसाइड करता है. बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज यहां से कैसे बिजनेस का प्रोपोर्शन, जो प्रोपोजिशन है, इट विल गेट इनहेंस्ड. दैट कम्स टू द पार्ट ऑफ द सिनर्जी इफेक्ट, 2 + 2 = 5 इफेक्ट, जो हमने मैनेजमेंट में पढ़ा है कि अगर एक जनरेशन दूसरी जनरेशन के साथ साइमल्टेनियसली काम करना शुरू कर दे, जो कि हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं, बेशक नो डाउट वो पैसा लेंगे, प्रोफेशनलिटी को पैसा जरूर लेंगे, दे विल टेक पैकेज, बट पैकेज अगर ले रहे हैं तो वो काम भी आपको करके देंगे. तो ये समझना किसे है, द वंस हु आर सिटिंग इनटू द टॉप लेवल बॉसेस, कि हाउ एंड व्हेन वी हैव टू ट्रांसफॉर्म द जनरेशन फ्रॉम वन फेज टू द अनदर. If one generation works simultaneously with the another generation, it will be fruitful to the upcoming generations for the business growth. फैमिली बिजनेस होता है, सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ द बिजनेस होता है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, ट्रेडिंग कंसर्न से लेके कंपनी के भी रूप में. whenever there are things, joint stock company, there are seven or more than 7 persons who form a company, and then the कंपनी रन्स बाय फॉर्मिंग अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ग्रुप. अब जरूरी नहीं है वो सातों के सातों एक ही उम्र के पड़ाव के लोग हों, कुछ कम भी हो सकते हैं उम्र के मामले में, कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई एज पैरामीटर गवर्नमेंट का तो नहीं है कि प्राइवेट में इतने ही से इतने उम्र के लोग जो हैं वो आगे सिस्टम में बढ़ाए जाएंगे. तो सिस्टम में बढ़ाना यंग जनरेशन को, इट्स वन पार्ट ऑफ द ओल्डर लॉट. बट प्रपोजिशन कहां से चेंज हो जाएगा, if we have to take into the account the growing market trends, we require
n number of lot of the people who can run for the organization from one place to the another. अब अगर एक old age person को we would say go to several places of the Greater Noida just to collect the data or to get the data or to sell the products. This is your n number of targets for a single particular day. They might face the difficulties due to their older age. But if the young lot will be assigned that particular responsibility, might be for the sake of the position or the sake of the power or for the sake of the money or for the sake of the job itself, they will follow the command of their respective head of the department and will get into that work. So we can train the youth as per what we require as and when the things demands. तो बिजनेस भी ऐसा ही है, पहले we establish it, then it gets grow, then it starts to grow, and finally it sows the seed. Finally it sows the fruit for the seeds which have been imbibed into it. Now the applicant tracking software. Now we all are living in a very digitalized world. Pan India, Digital India, Make in India concepts have initiated and came over a period of time into our country. This is a part of the smart work. बिजनेस को ट्रेडिशनली अगर लाला की दुकान के रूप में चलाएंगे तो कभी लाला की दुकान एक जनरेशन के आगे दूसरी जनरेशन में बंद हो जाएगी. Why? Because trend changes generation after generation. बट लाला की दुकान को हमें बनाए रखना है. So how can that thing happen? सोल प्रोप्राइटरशिप को अगर हम कंपनी के फॉर्म के कन्वर्जन के रूप में प्राइवेट लिमिटेड के कन्वर्ट कर देंगे तो वही बिजनेस जो लाला की दुकान का फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में चला वो एक बड़े व्यापक रूप में जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता चला जाएगा. और यहाँ पे आपका वैल्यू एनहेंसमेंट जो हम वैल्यू फिट कहते हैं वो चीज अब आराम से 100% एग्जीक्यूट आउट हो जाएगी. व्हाई? बिकॉज दैट दुकान इन द फॉर्म ऑफ द सोल ट्रेडिंग कंसर्न फर्म year after years got transformed into the form of the private limited company in the form of a executive body headed by directors, chairperson, chairman, and the other executive lot of the people in the form of the managers or the general managers. बिजनेस हमारा ही था. पहले हम उसको जो था सिंगल एंटिटी के रूप में चला रहे थे. थोड़ा सा हमने अपना तरीका बदला, हमने उसको रजिस्टर्ड करा लिया है कंपनी के रूप में. कल भी हमारी एक ही दुकान थी, आज भी हमारी एक पर्टिकुलर किसी भी तरीके का परचून की एनी स्मॉल काइंड ऑफ द शॉप कुड बी किराने का स्टोर वॉट एवर इट इज, बट नाउ वो किराने का स्टोर गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द डिपार्टमेंटल स्टोर एंड इट स्टार्टेड इट्स रनिंग इट्स ओन एजेंसीज. होलसेल से आप माल आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर से आ रहा है, उसका अपना एक एंटिटी का नाम हो गया. तो ये क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपका वैल्यू एनहेंसमेंट है. बट हाउ इट टुक प्लेस? जनरेशन आफ्टर जनरेशन. एक जनरेशन थी, उन्होंने कहा खोखे पे दुकान पे बैठ लेंगे, जो हमारे ग्रैंडफादर तक की थी, यहां से जो कमा लेंगे हो गया. एक जनरेशन फादर की आई, उन्होंने कहा थोड़ा सा इस खोखे को दुकान का रूप दे देते हैं और बिजनेस कर लेते हैं. तीसरी पीढ़ी जो बेटे की आई, उसने कहा नहीं इसको शोरूम का रूप देंगे और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे. तीन अलग जनरेशन थी, तीनों का अपना अलग व्यू था, बट एक सिंगल चीज थी कि बिजनेस बिजनेस था और वो नहीं बदला. पहले भी ग्रोसरीज का हम स्टोर्स चला रहे थे, किराने की दुकान को, बट इन द फॉर्म ऑफ दी एक छोटी सी परचून शॉप के रूप में. नाउ इट गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू अ डिपार्टमेंटल स्टोर, गेटिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ द वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ द franchisees, the distributorship part of the FMCG sector companies. So that is how you need to transform from one particular idea of a product to the another of the same line of the goods and products. धंधा बदल लेंगे बार बार तो बिजनेस में सक्सीड नहीं कर पाएंगे. धंधा करने का तरीका बदल लेंगे तो बिजनेस में आगे बढ़ जाएंगे. Now, how we have to make youth to come into the business? That is what is most important thing. If business not listening to their youth, they are not listening to the future competitors, employees or customers.
as per how the World Economic Forum has quoted. Now, this is which is very important aspect. When we have to actually bring the youth into the limelight of the business, कब एक फादर या कब एक पर्टिकुलर कंसर्न, अगर इट्स अ फैमिली बिजनेस और अ कॉर्पोरेट वन, कब हम यंगस्टर्स को लाएं पोजिशनल पावर के डिजिग्नेशंस पर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. What are the prospects what we have to look into account? Qualified for product need and purchasability, and two-way communication for sales reputation. Okay. First, we need to understand the requirement of the market. प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के साथ में यूथ के क्वालिफिकेशन को आइडेंटिफाई करते हुए उसको उस काम में लाना जिसमें वो पारंगत हासिल रखता है, एंड फ्रॉम देयर ऑन उसको आगे की तरफ बिजनेस में ले जाना, काम कराते कराते कराते. जैसा कंपनी में होता है, यू ज्वाइन एज अ फ्रेशर फॉर 3.5 to 4 lakhs LPA और कॉस्ट टू द कंपनी CTC पैकेज पे एज अ AGM असिस्टेंट जनरल मैनेजर. स्लोली एंड स्टडली वो MBA या वो BTech या वो MTech वो ट्रेन होता है उस कंपनी में हर 2 साल 3 साल पे. फिर उसका पे स्केल का पे बैंड फिक्सेशन का जो एक लेवल होता है वो पार होके दूसरे लेवल पे आता है, फिर उस पर वो काम करता है. तो वो जो आपका CTC 2.5 से 3 लाख रुपए साल के पैकेज का था, 3 साल बंदा अगर सिंसियरली अपने मेहनत से काम कर लेता है तो वही उसका एवरेज पैकेज 5 से 6 लाख का हो जाता है. और अगर उसको कोई अच्छे कॉलेज का इनिशियल स्टार्टअप मिल जाता है कि ब्रांड है, अच्छा है कॉलेज, IIT IIM की तरीके, तो थोड़ा सा इसमें और वैल्यू एडिशन हो जाता है. बट बिजनेस एंड कॉर्पोरेट हमारे लिए जो सर्विस है, व्हाट वी आर परफॉर्मिंग इन एन 8-hour जॉब और अ 10-hour जॉब, जब हम उसको कंसिडर करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो एक कॉर्पोरेट एंटिटी का बिजनेस हो जाता है. नाउ कॉर्पोरेट एंटिटी के बिजनेस में जो लोग वर्क कर रहे हैं, नाउ दे नीड टू वर्क as per the requirements of the industry, and that is what the shaping the future generations I've just quoted out. So the thing is how to shape the generation after generation the future of others. ऐसा कुछ हमें काम करना है, ऐसा कुछ कंसीव करना है आइडिया कि हमारी हर पीढ़ी के लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उनको बेनिफिट मिले, ओल्डर लॉट को भी, यंगर लॉट को भी, एंड जो अभी आने वाला लॉट है. जैसे हम लोग बैचेस वाइज पढ़ा के एक बैच को दूसरे बैच को निकालते चले जाते हैं एंड उसकी जगह नए आते हैं, पुराने वाले आपके एलुमनीज के रूप में प्लेस्ड हो जाते हैं, एंड दैट्स हाउ द थिंग शुड गेट रन. देन ओनली वी कैन से एक रवा हालत में जब चीजें हो गई तो कोई भी इंडस्ट्री ग्रो करेगी. बिकॉज इंडस्ट्रीज का जो जेस्टेशन पॉइंट है, इट कांट गेट एनालाइज्ड इन अ 2 to 3 years जॉब और नॉट इनटू अ 2 to 4 years job, at least 10 to 15 years. In a 10-year tenure of a corporate entity, one can analyze, going through its financial results, what actually we were, the time when we started, and where we are at this point of time. And if we could do this thing, it means we can make the generations to work as per the needs and the requirements of what we require and ask for. रिटेलिंग है, कंस्ट्रक्शन है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल इंडस्ट्री है, किसी भी इंडस्ट्री में आप ले जाइए लोगों को काम कराने के लिए. ऐसा सिस्टम बनाइए जिस सिस्टम से जनरेशन आफ्टर जनरेशन फ्यूचर जो है किसी कैंडिडेट का बने, तभी वो अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी या कैलिबर के साथ काम कर पाएगा. जब उसकी क्षमता पे हम, जैसे हम कहते हैं ना, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, उसको आइडेंटिफाई करते हुए व्हेन वी विल टेक द पीपल टू अनदर लेवल, वो कंपनी के लिए हमेशा फ्रूटफुल एसेट बन के काम भी करेगा और आगे तक काम करता चला जाएगा. क्यों? क्योंकि वही चीज है, once we are able to understand the skills of the employees, then we can make them perform on their strengths and get the desired output of the results. And that should what the motive of the business should be. जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आप देखिए, it brought Akash Ambani into a very younger age, being the chairman of the IPL. By making him the chairman of the IPL की पूरी टीम का उसको मालिक बना दिया. He brought Rohit Sharma to the team in the year 2013, and look,
In the year 2022, it became the most successful IPL team by winning 5 IPL titles. How it took place? It took place because the company understood the ability of Akash Ambani being a sportive person. उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा था, और किसी डाइवर्सियर कंपनी में चला जाता, बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी RIL के बैनर के तले, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, शायद अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी पे ना परफॉर्म कर पाता, क्योंकि उसका स्पेशलाइजेशन जो ऐसे अपना स्ट्रीम का मामला आता है पीजी करने के बाद, वो शायद उसका स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा रुझान था। उसको उसके काम के अकॉर्डिंग, उसकी कैलिबर के अकॉर्डिंग उसको डिजिग्नेशन दी गई, एंड सी इट ब्रॉट द फ्रूटफुल रिजल्ट्स टू दी मुंबई इंडियंस। तो अभी मुंबई इंडियंस ज्यादा बड़ी चीज थी कि आकाश अंबानी का चेयरमैन बनाया जाना, ये ज्यादा बड़ी चीज थी। नो डाउट वो आया, उसने प्रोफेशनल की तरीके काम किया, पैसा भी लिया, पैकेज भी अच्छा लिया, पावर भी उसने ली, बट उसने काम भी रह के दिखा दिया और कर दिया, जो कि आपके किसके लिए जरूरी था? मालिक के लिए, मुंबई इंडियंस के हित के लिए। बिकॉज 2013 के पहले के जो 5 साल थे उसमें कुछ नहीं हो रहा था मुंबई इंडियंस का, जीतना तो दूर, इट वॉजंट एबल टू मेक द प्लेस इनटू दी टॉप 4 टीम्स, बट उसके आने से थिंग्स गॉट चेंज्ड। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करना। अब वो स्मार्ट, व्हाट इज स्मार्ट टेक्निक? स्मार्ट इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। बहुत क्लियर कट हमें यूथ को ऑब्जेक्टिव्स बता देने चाहिए। हम किस काम के लिए हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 8 घंटे की जॉब में आते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, वट एवर मे बी द रूटीन वर्किंग आवर्स। If the organization is able to specifically state the objectives, that means the business is on the very fruitful lines of getting its productive output. Because SMART में S stands for specific and M stands for measurable. Only when we are able to provide a specific objective to our youth, that what exactly the company's HR want you to do in a 8 or a 10-hour job, then only the performance evaluation can get done of the employee or the n number of lot of employees in a efficient manner. इसको कि हम कार्य कुशलता कहते हैं। काम तो हर कोई करता है, लेकिन काम करके जिसे कहते हैं बेगार भुगत के देते तो फायदा क्या? चाय बनाई भी और चाय पीने के बाद कहा कि चाय का टेस्ट नहीं आया, तो फायदा क्या चाय पीने से? वही आपका एक प्रफुल्ल बिलोरे नाम का बंदा है, वो भी चाय पिलाता है, बट वो उस लगन से, उस शिद्दत से द थिंग्स आर गेटिंग रन बाय हिम, कि वो जब चाय इंसान पीता है तो वाकई में उसकी थकान उतर जाती है। और वो प्रफुल्ल बिलोरे MBA का टैग लेके जो चलता है, तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ द टैग्स। एक है महाबेकार आदमी, MBA वर्सेस द मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो इफेक्टिवनेस का पैरामीटर आज वो मिस्टर बिलोरे अहमदाबाद की ब्रांड के नाम से जाना जाता है। तो हाउ इज इट पॉसिबल? ऑब्जेक्टिव्स बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। उसने एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की, एक आउटलेट के रूप में एक छोटा सा अपना जो था व्यापार शुरू किया। चाय उसका एक प्रोडक्ट था, टी मेकिंग प्रोडक्ट के वो कहां पे आया? आगे आया। तो टी प्रोडक्ट को उसने इतना पॉपुलराइज कर दिया कि वो आपका जो एक खोखा था, ठेला जिस पे लगाता था, नाउ इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रिटेल आउटलेट लाइक अ कैफे कॉफी डे, which is serving the n number of shakes, n number of the coffees, n number of the teas, n number of the pastas and the Maggies and the noodles and all. How is it possible? क्योंकि जब वो आया था तो 3 साल मैकडोनल्ड में एक वेटर की सर्विस को करके आया था, उसके दिमाग में क्या था? मैंने लोगों को खाना परोसा है, अभी जो मेरे एम्प्लॉइज आएंगे मुझे उनसे उसी तरीके से काम अपने आउटलेट में कराना। ईगो को त्याग दिया एम्प्लॉइयों की और कहा देखो ग्राउंड लेवल से चल के काम करोगे, सीखोगे तो बहुत आगे बढ़ जाओ। और उन्होंने एग्जैक्टली वैसा ही काम करना स्टार्ट किया। हाथ में उनको उसने ही स्टार्टेड टू ट्रेन द वर्कर्स हाउ टू सर्व
या द टेक्निक हाउ टू सर्व द फूड टू अदर्स। पहले खुद अंग्रेजी में बात करता था, इंग्लिश में, जो रोड साइडर्स ट्रेसपासर्स थे, मैम प्लीज टेस्ट अ कप ऑफ टी ऑफ माइन। वही उसने जो नॉलेज थी वो इनकलकेट करी अपनी यंगर जनरेशन को, एंड टुडे ही इज अ मिलेनियर इन फ्रंट ऑफ द crores and millions of the population। 140 करोड़ पॉपुलेशन में एक ऐसा एमबी है जिसकी अपनी एक अलग पहचान है। वो आईएम से भी ऊपर है, वो बाकी और इंस्टीट्यूट्स के एमबीए से ऊपर है। क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट, बिकॉज he inculcated the objectives very quickly and very swiftly to its people who were to the organization कि भैया हमें ऐसे काम करना है और ऐसे करवाना है। Then achievable, relevant and time bound. Whatever the objectives are to get stated by the organization, it should be achievable, it should be relevant and it should be of time bound nature। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, it shouldn't make which is not time bound। अगर कोई चीज टाइम बाउंड नहीं होगी तो इसका मतलब सीधा ये है कि हम अपने उद्देश्यों से पीछे भाग रहे हैं या पीछे हट रहे हैं या हम उस काम में लगन नहीं लगा रहे हैं। बिजनेस मींस स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक हमारी होनी चाहिए कि हमको कैसे काम एम्प्लॉइयों से लेना है और उनको क्या काम देना है, एंड जैसे हम काम देंगे उसी तरीके से वो रिस्पॉन्ड करके हमको वर्क करके देंगे। ये हमारे सिस्टम का पार्ट है कि किसको कौन सी वर्क ड्यूटी असाइन करी जानी चाहिए, उसकी कैलिबर, उसकी एफिशिएंसी के अनुसार। अगर ये काम एक एंटिटी कर पाए तो बिजनेस में जो हम वैल्यू एनहांसमेंट या प्रपोजिशन फिट की बात करते हैं, इट वुड बी अ वेरी सिंपल थिंग टू गेट डन। 10 लोगों को सिस्टम में लाके काम करवा के, इट कांट बी द थिंग टू गेट सेट कि हमने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए। टीचिंग इंडस्ट्री में 10 आप पोस्ट ग्रेजुएट को ले आइए, 6 महीने सेमेस्टर पढ़वा लीजिए और 10 के 10 का रिजल्ट एवरेज आए या लुटिया डुबे दे। उससे अच्छा एक पढ़े लिखे को ले आइए जिसको आपके एजुकेशनल सिस्टम की नॉलेज हो, चाहे वो पीएचडी हो, चाहे नेट हो, चाहे जेआरएफ हो। उससे 6 महीने का, साल भर पढ़वा लीजिए। एकेटीयू का रिजल्ट हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट हो, उसको उस पैरामीटर पे इक्वेट करके देखिए कि कौन टास्क मास्टर है या कौन टास्क एग्जीक्यूटर है। भले ही उसको 6 लाख रुपए साल का पैकेज दे दीजिए तो 50,000 रुपए महीने की नौकरी होती है। अरे 10 एम्प्लॉइयों को 10,000 या 15,000 पे रख रहे हैं तो कॉस्ट भी बढ़ रही है ऑर्गेनाइजेशन की, और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो हैं वो भी अनप्रोडक्टिव आते चले जा रहे हैं, तो क्वालिटी भी डाउन हो रही है। एंड एट द सेम टाइम हम किस चीज पे नहीं वर्क कर पा रहे हैं? प्रोडक्टिविटी के एनहांसमेंट पे, जो कि आउटपुट होता है। तो अगर हम क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को डिलीवर करना चाहते हैं लोगों को, जैसे कि मोस्ट ऑफ दी साइट्स आर ई-कॉमर्स साइट्स आर डूइंग सो, वो क्या करते हैं? शिपिंग चार्जेस को वेव ऑफ नहीं करते हैं, वो उसको ऐड ऑन कर देते हैं प्रोडक्ट पे और प्रोडक्ट की एमआरपी पे डिस्काउंट कर देते हैं कि हमारा बंदा अगर ट्रांसपोर्टेशन जांगड़ अपने खर्च करके जा रहा है, कोई डिलीवरी बॉय डिलीवरी करने किसी प्रोडक्ट की, तो ही शुड नॉट और शी शुड नॉट फील लाइक कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। हम प्रोडक्ट पे कट ऑफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट वैल्यूएबल है। सिमिलरली वैल्यूएबल पीपल को अगर आप अपने बिजनेस में लाएंगे, so it will make the business to run for n number of years. Hello, ma'am, are you there? Hello. Yes, sir. Okay. Okay, so I am just going on. Now the business and what kind of probably the business could be for the beginners or the learners। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम किस तरीके का बिजनेस जो है वो अपने स्टार्टअप्स के रूप में चला सकते हैं जब हमारे पास पैसा नहीं है, या वी आर रनिंग शॉर्टेज ऑफ फंड्स, या वी आर गोइंग ऑन टू टेक लोन्स एंड समथिंग लाइक दैट टू स्टार्ट अप आवर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। तो व्हाट प्रोबेबली कुड द बिजनेसेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो हम कर सकते होते हैं? It could be coffee shop, bakery, ice cream stand। See, आजकल कैरी ऑन व्हील्स का बहुत अच्छा चल रहा है मामला, जो स्ट्रीट साइड फूड होता है, उससे भी people are starting off the fast fooding form of the things। रेस्टोरेंट बनाने का we don't have the infrastructure, we don't have the land, or we don't have the financial resources or the technical viability,
So we are running on the food related activities on a carrot or a wheel, जो कि एक मेटाडोर टाइप की गाड़ी होती है. Why we are doing so? We know we are sitting into the NCR region. हम NCR में रह रहे हैं. NCR में लोगों के पास भागने दौड़ने के सिवा और कुछ काम नहीं रहता है लाइफ में. People basically work like machines. इंसान मशीनों की तरीके काम करता है. सवेरे उठता है 4 बजे, 6 बजे मेट्रो स्टेशन पे होता है, 6:30 की मेट्रो पकड़ के जो है वो 8 बजे अपने दफ्तर पहुंचता है, क्योंकि 8:30 या 9 की जो टाइमिंग होती है उससे उसको पंच इन करना होता है. और फिर 5 बजे 5:30 बजे व्हेनेवर द उसका वर्किंग आवर्स खत्म होते हैं, वो वापस बैक टू घर जाता है और अपना फिर से एक नेक्स्ट डे की रूटीन लाइफ के लिए अपने आप को प्रैक्टिस करता है. क्या इस भागती दौड़ती बिसरती लाइफ में या जिंदगी में डू ही और शी इज हैविंग इनफ अमाउंट ऑफ टाइम टू कुक ऑल या टू फुलफिल ऑल हिज हॉबीज और इंटरेस्ट? नहीं भाई. तो ये कैरी ऑन व्हील्स का कॉन्सेप्ट आया वहां से, टाइम मैनेजमेंट के पार्ट को लेके, कि रेस्टोरेंट जाने का भी या होटल जाके 1 घंटे वेट करने का भी, आधा घंटा वेट करने का भी किसके पास टाइम नहीं है? आजकल के लोगों को, जो इधर गुड़गांव में काम कर रहे हैं या इधर नोएडा में काम कर रहे हैं या ग्रेटर नोएडा जो कि एक एजुकेशनल हब है. क्यों? बिकॉज ऑफ द फैक्ट टाइम मैनेजमेंट. इधर सवेरे फिर से एक रूटीन लाइफ है, एक शेड्यूल पूरा, दूसरा शेड्यूल पूरा करना है, और उसमें अगर हमारे पास जो एक एडिक्वेट टाइम है फॉर गेटिंग गुड स्लीप, वो भी अगर हटा देंगे तो फिर बचेगा क्या लाइफ में? तो उसके लिए ये कैरी ऑन व्हील्स का कॉन्सेप्ट है. चलते फिरते स्ट्रीट फूड कुछ भी खा लो, पेट भर लो, लेकिन अगले दिन फिर ड्यूटी पे आ जाओ, और फिर वहां पे अपना टाइम का फिर ऐसा मैनेजमेंट कर दो कि अगर टाइम बचे तो चले जाओ रेस्टोरेंट. तो वो क्या है आपका कैरी ऑन व्हील्स? वो एक सप्लीमेंट्री, हमें एक एंसिलरी हमें जो है वो एडवांटेज दे रहा है. क्या करने के लिए? होटल और रेस्टोरेंट में ना भी जा पाए तो भी कंपनसेटरी फूड को हमें जो है पेट में जाने के लिए, इट इज मेकिंग अस टू ईट इट. It couldn't have been possible if these things, the roadside food wouldn't have been there for us. वो छोटा सा खोखा या छोटा सा एक हट टाइप आपका जो 4-5 लोगों के बैठने के लिए एक स्टॉल बनाया जाता है. Why is it so? बिकॉज इतनी भीड़ जो अगर डोमिनोज में चली जाएगी, तो अगर एक ऑर्डर पे 1 घंटा टाइम चला गया तो खाया तो 100 रुपए का, और 100 रुपए का खाने के लिए 100 रुपए का पेट्रोल फूका, एंड देन द थिंग वाज वी वेस्टेड 2 आवर्स. इससे अच्छा 20 मिनट वो कैरी ऑन व्हील को बोलते, यार तू वो दे दे कुछ भी जो तेरे पास हो, स्प्रिंग रोल में, वो 20 मिनट में खा के पेट भर के काम पे तो चल देते. तो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. And then comes the franchises business in India. Domino's, Pizza Hut, KFC, खादिम्स. अब ये जितने भी आपके डोमिनोज हैं, मैकडोनल्ड्स हैं, KFCs हैं, पिज्जा हट है, ये आपको लगातार, नाउ दिस इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिसका मैंने आपको पहले भी फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड माय सेशन आई जस्ट ब्रीफ्ड अबाउट इट, कि कुछ ऐसी चीजें बिजनेसेस की होती हैं विच वी हैव टू टुक इनटू अकाउंट ऑफ कंसिडरेशन, जहां पे हमारी प्रोडक्ट की वायबिलिटी एज पर द जनरेशनल लॉट ऑफ द पीपल से जुड़ी हुई होती है. KFC आपको हर मॉल में मिलेगा, डोमिनोज आपको मिलेगा, पिज्जा हट आपको मिलेगा. क्यों मिलेगा? क्योंकि खाने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है. चाय की दुकान कम मिलेगी, कैफी कॉफी डे ज्यादा मिलेंगे. अभी चाय के खोखे कम है, कैफी कॉफी डे ज्यादा है, क्योंकि आज की जनरेशन का जो तरीका है लाइफस्टाइल को जीने का, वो कैफी कॉफी डे में टी स्नैक्स या कॉफी स्नैक्स के साथ में क्या करते होते हैं? रिलैक्स करते होते हैं थोड़ा सा बहुत वहां जाके. KFC में भी, पिज्जा हट में भी, डोमिनोज में भी यही चीज है. सो देयर द बिजनेस नीड्स टू फ्रेम आउट द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज इनटू देयर माइंड, कि क्या एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी, जो कि हम एसबीयूज के रूप में देखते होते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो पार्ट है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स, कि कौन सी वो स्मॉल टाइप ऑफ द बिजनेसेस हो सकते हैं जो कि हमें लॉन्ग रन में सर्व
Okay. So coming to the end part of the session, जरूरी क्या है? Now I am getting into the crux point of it. A small scale industry versus the abundancy of the capital. There are two kinds of the industries in our India: manufacturing, that is the small scale ones, versus the corporate industries. Now the thing is, once we are running the different kinds of the business related activities, इसमें हमें दो चीजों को ध्यान में रखना है. पहली, एम्प्लॉयमेंट की वायबिलिटी किस इंडस्ट्री में. दूसरा, कॉर्पोरेट आपका क्या इस चीज को एक्सेस, क्या कॉर्पोरेट इस चीज को ठीक मानता है कि नहीं. तो नाउ द टू एस्पेक्ट्स आर देयर. तो स्मॉल स्केल या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम ये देख सकते हैं कि ज्यादातर आपके हैंडलूम प्रोडक्ट्स को ज्यादा जो है तवज्जो दी जाती है एज पर द कॉर्पोरेट वंस. तो अगर वी हैव टू, हाँ ठीक है. So if we have to consider things, that how the things are to get done in a very proficient manner. देखिए, proficient manner means effective way. As from the starting of the session I said, कि productivity and effectiveness can only get enhanced when we follow the SWOT analysis. So strengths के ऊपर अगर हम आज बात करके इसको conclude करें, हम किसी भी बंदे को अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाएं और हम वैल्यू एनहेंसमेंट चाहते हैं, 10-20 साल बाद हमारे बिजनेस को एक अच्छा जो है वो रिस्पांस मिले, तो उसके लिए जरूरी क्या है? हमें स्ट्रेंथ पे एम्प्लॉयज की काम कराना है, उनके एरिया ऑफ वर्क इंटरेस्ट से कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के वर्क इंटरेस्ट को जोड़ते हुए. एंड इफ दैट थिंग कैन टेक प्लेस, इट इज 100% गारंटीड दैट organization or the institution or the specific industry will achieve the end goals and the targets of it, which otherwise may not have been done if these things couldn't have been taking place. इसलिए जब ट्रांसफॉर्मेशन करना हो तो we have to look into the account of consideration, कब एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन से हमें सुपरसीड करते हुए डिजिग्नेशन, पावर एंड उसको उसकी जॉब में बढ़ाते हुए कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के या इंडस्ट्री के गोल्स से कोरिलेट करते हुए आगे तक सिस्टम में ले जाना है और इनहेंसमेंट करना है हर पीढ़ी के जनरेशंस के लोगों का. एंड विद दिस आई कंक्लूड द सेशन. थैंक यू टू ऑल. थैंक यू द पीपल हु provided me an opportunity to come to the online session and being a part of it. As we come to the end of this session, I thank our guest for this wonderful session. It was such an honor and privilege to have you with us today, sir. I thank all the listeners as well. Thank you so much. Thank you.